کبھی کبھی قسمت کتنی مہربان ہوتی ہے. میں ان کے لائق نہیں تھی. مگر پھر بھی انہوں نے مجھے سہارا دیا. آپ رہنے دیں، مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے. السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل دیوانگی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ نرمین اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں نگین کو قتل کروا دوں گی، میں سلطان کو اتنی آسانی سے چھوڑوں گی نہیں. نرمین کی ماں اس کے غصے کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم کیا کرو گی. جواب میں نرمین کہتی ہے کہ اگر مجھے میرے حصے کی محبت نہ ملی تو میں سلطان کے ساتھ وہ کروں گی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جبکہ دوسری طرف سلطان جو نگین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہے، آخرکار اس کی نظر نجات پر پڑ جاتی ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑی تھی. ایک رکشے کو روک کر وہ رکشے میں بیٹھ جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آخرکار نگین اور ہارون کی شادی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ابھی اس کے لیے آزمائش باقی ہے، کیونکہ ہارون کی ماں جس نے نگین کو دل سے قبول نہیں کیا. نگین شادی کے اگلے دن کچن کی طرف جا رہی ہے جب اس کے کانوں میں اس کی ساس کی آوازیں پڑتی ہے، جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اب اپنے بھائی کی طرح اس یتیم مسکین کے قصیدے نہ پڑھنے شروع ہو جاؤ. میری تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا میں اسے صرف میرا ہی بیٹا ملا تھا، ساری زندگی میں اسے معاف نہیں کروں گی. نگین کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے ان کی باتیں سن کر، جبکہ ندا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی پلیز آہستہ بولیے، وہ سن لیں گے. جس کے جواب میں ہارون کی ماں اور زیادہ اونچا بولتی ہے کہ سنتی ہے تو سنے، میں کوئی ڈرتی ہوں اس سے؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر اونچی آواز میں بولنے سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. نگین اپنی ساس کے دل کو صاف کرنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے. وہ اسے طعنہ دیتی ہے کہ جو لڑکی ساری زندگی دوسروں کے گھر میں اور ہاسٹل میں رولتی رہی، جس کے ماں باپ کا خاندان کا کچھ پتہ نہ ہو، اس کو معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آوارہ ہی کہتا ہے. دوستوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا نگین سلطان کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. اینڈ تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل دیوانگی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ناظرین دیکھیں گے کہ نرمین اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں نگین کو قتل کروا دوں گی، میں سلطان کو اتنی آسانی سے چھوڑوں گی نہیں. نرمین کی ماں اس کے غصے کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم کیا کرو گی. جواب میں نرمین کہتی ہے کہ اگر مجھے میرے حصے کی محبت نہ ملی تو میں سلطان کے ساتھ وہ کروں گی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جبکہ دوسری طرف سلطان جو نگین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہے، آخرکار اس کی نظر نجات پر پڑ جاتی ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑی تھی. ایک رکشے کو روک کر وہ رکشے میں بیٹھ جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آخرکار نگین اور ہارون کی شادی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ابھی اس کے لیے آزمائش باقی ہے، کیونکہ ہارون کی ماں جس نے نگین کو دل سے قبول نہیں کیا. نگین شادی کے اگلے دن کچن کی طرف جا رہی ہے جب اس کے کانوں میں اس کی ساس کی آوازیں پڑتی ہے، جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اب اپنے بھائی کی طرح اس یتیم مسکین کے قصیدے نہ پڑھنے شروع ہو جاؤ. میری تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا میں اسے صرف میرا ہی بیٹا ملا تھا، ساری زندگی میں اسے معاف نہیں کروں گی. نگین کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے ان کی باتیں سن کر، جبکہ ندا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی پلیز آہستہ بولیے، وہ سن لیں گے. جس کے جواب میں ہارون کی ماں اور زیادہ اونچا بولتی ہے کہ سنتی ہے تو سنے، میں کوئی ڈرتی ہوں اس سے؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر اونچی آواز میں بولنے سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. نگین اپنی ساس کے دل کو صاف کرنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے. وہ اسے طعنہ دیتی ہے کہ جو لڑکی ساری زندگی دوسروں کے گھر میں اور ہاسٹل میں رولتی رہی، جس کے ماں باپ کا خاندان کا کچھ پتہ نہ ہو، اس کو معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آوارہ ہی کہتا ہے. دوستوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا نگین سلطان کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. اینڈ تھینکس فار واچنگ.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी। जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी। जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी। जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है,
जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ, जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ, जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है,
आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है।
लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है।
वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ, जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे? ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ, जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे? ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है,
जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी, एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी, एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी? जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी, एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से
कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी। जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ, जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई की तरह उस यतीम मिस्कीन के कसीदे न पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी में उसे माफ नहीं करूंगी। नगीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है उनकी बातें सुनकर, जबकि निदा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेंगे। जिसके जवाब में हारून की माँ और ज्यादा ऊंचा बोलती है कि सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती हूँ उससे, ये मेरा घर है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी मना नहीं कर सकता। नगीन अपनी सास के दिल को साफ करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उसे ताना देती है कि जो लड़की सारी जिंदगी दूसरों के घर में और हॉस्टल में रुलती रही, जिसके माँ बाप का खानदान का कुछ पता न हो, उसको माशरा क्या कहता है, आवारा ही कहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नगीन सुल्तान को माफ कर देगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दीवानगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि नरमीन अपनी माँ को कहती है कि मैं नगीन को कत्ल करवा दूंगी, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। नरमीन की माँ उसके गुस्से को देखकर पूछती है कि तुम क्या करोगी। जवाब में नरमीन कहती है कि अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत न मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान, जो नगीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, आखिरकार उसकी नजर नजत पर पड़ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक रिक्शे को रोककर वो रिक्शे में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार नगीन और हारून की शादी हो ही जाती है, लेकिन अभी उसके लिए आजमाइश बाकी है, क्योंकि हारून की माँ, जिसने नगीन को दिल से कबूल नहीं किया, नगीन शादी के अगले दिन किचन की तरफ जा रही है जब उसके कानों में उसकी सास की आवाजें पड़ती है, जो अपनी बेटी से कह रही है कि अब अपने भाई